बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. आदाब, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश खिदमत है मंजरनामा। अब खबर तफसील से। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया है, तो सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां उनकी काबीना हल्फ ले रही है। संविधान અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ગણપતભાઈ વેસ્તાભાઈ વસાવા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જણાવવામાં આવશે તેવી જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. રોલ से विधायक तो गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से आज नरेंद्र मोदी चौथी बार आज उन्होंने हल्फ लिया और उनके काबीना के वज़ीर अब हल्फ ले रहे हैं और एक एक कर कई वज़ीर ने हल्फ ले लिया है। और ये अब से कुछ देर पहले ये हल्फ बर्दारी तकरीब शुरू हुई है जो अभी जारी है। इसमें मुल्क की कई अहम शख्सियात इस तकरीब में લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. બોખીરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. तो नरेंद्र मोदी के काबीना के वज़ीर हल्फ ले रहे हैं। हल्फ लेने के बाद अभी एक वज़ीर पेपर पर दस्तखत कर रहे हैं। तो आज चौथी बार वज़ीर आला की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने हल्फ लिया है और ये तकरीब अभी अहमदाबाद में जारी है। बीजेपी के कई सीनियर रहनुमा इस तकरीब में मौजूद हैं। कई अहम हस्तियां, कई फिल्मी हस्तियां भी इस तकरीब में मौजूद हैं। गुजरात का चुनाव इस बार
काफ़ी अहम था, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को इंतखाब के क़ब्ल वज़ीर आज़म की हैसियत से पेश किया जा रहा था और इस बार का इंतखाब, गुजरात का इंतखाब बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम था। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मुकम्मल टेन्योर में तीसरी बार इंतखाब लड़ रहे थे। શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતરપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર હું ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું પરસોત્તમભાઈ ઉદયજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ગુજરાત રાજ્યના કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણામાં લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। तो इस तकरीब में एल.के. आडवाणी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, रमन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद हैं। तो बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा के अलावा फिल्मी दुनिया की हस्तियां भी तकरीब में मौजूद हैं। गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार हल्फ लिया है। सरदार पटेल स्टेडियम में यह तकरीब मुनक़िद की गई है। નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું ગુજરાત રાજ્યના રાજકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું પરબતભાઈ સવાભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की काबीना हल्फ ले रही है। चौथी बार नरेंद्र मोदी वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया। सरदार पटेल स्टेडियम में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां बड़ी तादाद में बीजेपी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના
મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું વસુબેન નરેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. तो नरेंद्र भाई मोदी की काबीना में हल्फ ले रही है. कई विधायकों ने वजीर की हैसियत से अभी हल्फ लिया है, जिसमें पिछली काबीना में जो वजीर थे वो भी शामिल हैं. कई विधायक जो वजीर की हैसियत से हल्फ ले रहे हैं वो तीसरी और चौथी बार एमएलए की हैसियत से जीत कर आए हैं. तो एक पुरकशिश तकरीब में नरेंद्र मोदी की काबीना हल्फ ले रही है. લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રદીપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટેના આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. नरेंद्र मोदी वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ ले चुके हैं और उनकी इस तकरीब में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बीजेपी और एनडीए के कई वज़ीर आला शिरकत कर रहे हैं. बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा भी वहाँ शरीक हैं. इस बार गुजरात का इंतखाब इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि मुल्क भर की निगाह गुजरात के इंतखाब पर थी. नरेंद्र मोदी को बीजेपी के कई रहनुमा वज़ीर आज़म की हैसियत से प्रोजेक्ट कर रहे थे. કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું લીલાધરભાઈ ખોડાજી વાઘેલા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના
યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. लीलाधर वाघेला ने अभी हल्फ लिया, जो दीसा से छठी बार मुंतखब होकर आए हैं और नरेंद्र मोदी की पिछली काबीना में ये वज़ीर मुमलिकत बराए मेहनत थे. तो लीलाधर वाघेला जिन्होंने अभी हल्फ लिया, दीसा असेंबली हलका से छठी बार एमएलए मुंतखब हुए हैं और इस बार फिर उन्हें काबीना में शामिल किया गया है. पिछली काबीना में वो वज़ीर मुमलिकत बराए मेहनत थे. इस बार देखना है कि नरेंद्र मोदी उन्हें कौन सा मौका देते हैं. तो सरदार पटेल स्टेडियम में मुनक़िद तकरीब में बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं और वज़ीर आला नरेंद्र मोदी सभी रहनुमाओं से मुसाफ़ा कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, चंकी पांडे, प्रकाश जावड़ेकर, सभी से नरेंद्र मोदी हाथ मिलाकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. जैसे ये बता रहे हो कि आपकी शिरकत ने इस तकरीब की रौनक बढ़ाई है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. तो नरेंद्र मोदी और ये रियली ये उनके लिए मौका है खुश होने का, क्योंकि उनका सियासी करियर इस बार दाव पर था. अगर इस बार सहारा श्री सुब्रत राज सहारा भी इस तकरीब में है. ये एक बहुत ही अहम है कि सुब्रत राज सहारा, जिन्हें कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के रहनुमा से वो उनकी क़ुर्बत है, लेकिन इस तकरीब में उनकी शिरकत लोगों को सबसे ताज्जुब लोगों को होगा कि इस तकरीब में वो भी शामिल है. तो वापस आते हैं, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ मंतनामा में. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की वजह को लेकर राज गहराता जा रहा है. सामने आए एक चश्मदीद योगेंद्र का कहना है कि किसी मुजाहिरीन ने तोमर के साथ मारपीट नहीं की थी, वो खुद ही दौड़ते दौड़ते गिर पड़े थे. चश्मदीद और उसके साथी ने पुलिस की मदद से तोमर को अस्पताल में दाखिल कराया था. उधर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि तोमर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. तो सुभाष तोमर की मौत मुजाहिरीन के ज़रिए मारपीट की वजह से नहीं हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से सुभाष तोमर की मौत हो गई है, जिसको लेकर दिल्ली में काफ़ी हंगामा है बरपा है कि मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए थे और उन्होंने इंडिया गेट पर तैनात पुलिस अमले पर पथराव किया, जिसकी वजह से सुभाष तोमर को काफ़ी चोटें आई और इस वजह से उनकी मौत हुई. जबकि एक चश्मदीद का कहना है कि सुभाष तोमर ड्यूटी के वक्त दौड़ते दौड़ते गिर पड़े थे.
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से चौथी बार हल्फ लिया है और उनकी काबीना ने अभी हल्फ लिया है, लेकिन उनके वज़ीर आला बनने पर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सवाल उठा रही हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। अमरोहा में नामानिगारों से बात करते हुए मौलाना बुखारी ने कहा कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कल भी इंसानों के कातिल थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फ़िरका परस्त मीडिया और फ़िरका परस्त पार्टियां गुजरात के मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। मौलाना बुखारी ने कहा कि ये कहना गलत है कि गुजरात में हुए असेंबली इलेक्शन में मोदी के हक़ में मुसलमानों ने वोट किया है। गुजरात के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए मौलाना बुखारी ने कहा कि मोदी कल भी मुसलमानों के दुश्मन थे और आज भी है। अमरोहा में नामानिगारों से बात करते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने मोदी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि कुछ फिरका परस्त मीडिया और फिरका परस्त पार्टियां गुजरात के मुसलमानों को बदनाम कर रही है, जो इस तरह की बातें फैला रही है कि मुसलमानों ने हालिया असेंबली इलेक्शन में मोदी के हक में वोट किया है। इस मौके पर बुखारी का ये भी कहना था कि गुजरात का जख्म कभी भी भरा नहीं जा सकता। वहीं फिरका परस्त मीडिया मोदी की छवि बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। जहां तक गुजरात में मोदी की जीत का ताल्लुक है तो वहां जमहूरियत पर फिरका परस्त हावी है, जो इस मुल्क की जमहूरियत के लिए शदीद खतरा है। एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अकलियतों को उनके हुकूक दिलाने के दावे करने वाली बरसर इख्तिदार लीडरान अब खामोश क्यों हैं? जो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिलाने की बात करते थे, उनके वादे कहाँ गए? अखिलेश सरकार पर इल्जाम लगाते हुए मौलाना बुखारी ने कहा कि सरकार कन्याधन के नाम पर अकलियती इदारों और मदारिस की रकम तकसीम कर रही है, जो सूबे के अकलियती इदारों और दीनी मदारिस को गुज़िश्ता 2 बरस से नहीं मिल रही है। बुखारी ने किसी लीडर का नाम लिए बगैर कहा कि मुसलमानों के पसीने पर खून बहाने के दावे कहाँ चले गए। मौलाना ने सूबाई हुकूमत से कहा कि इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक अब तक मुसलमानों के लिए 18% रिजर्वेशन का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन इस ऐलान का न होना इस बात की दलील है कि सरकार के दिल में खोट आ गया है। मौलाना ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत में तब्दीली उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन के बगैर मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो मंजरनामा में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. देखिए रोजाना